Assalamu alaikum. Welcome back to Ing with Shaz. Shaz is here. Dear viewers, please subscribe my channel. Today I'm gonna introduce William Shakespeare to you. As all of us know, William Shakespeare doesn't need any introduction. But for academic purposes, I'm going to give a brief biographical sketch of him, his literary productions, and other details of his life. Let's start. William Shakespeare was an English poet, playwright, and actor. कि शेक्सपियर एक अंग्रेज ड्रामा निगार, शायर और अदीब था. Widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's greatest dramatist. कि उसे जो है अंग्रेज़ी अदब का सबसे बेहतरीन लिखारी समझा जाता है, बल्कि वो आलमी अदब के उफक पर एक जगमगाता हुआ सितारा है. कि शेक्सपियर जो है belongs to the whole world. Everyone knows about him. Everyone has heard his name. He is often called England's national poet and the bard of Avon. कि उसे इंग्लिस्तान का कौमी शायर गर्दाना जाता है और उसे बॉर्ड ऑफ एवन कहा जाता है. बॉर्ड कहते हैं पोइट को. और स्ट्रेटफर्ड अपॉन एवन, इट वाज अ medieval market town in England's West Midlands, the birthplace of Shakespeare. कि ये शेक्सपियर का जाए पैदाइश है. एक छोटा सा कस्बा था वेस्ट मिडलैंड के इलाके में. Here, Shakespeare was born in a half-timbered house in Henley Street. His extant works, extant कहते हैं still surviving, including collaborations. Collaboration का लफ्ज़ी मतलब है the action of working with someone to produce something. कि कुछ ड्रामे उसने खुद लिखे और कुछ ड्रामे ऐसे भी थे जो उसने फेलो ड्रामाटिस्ट के साथ मिल के लिखे, तो उन्हें collaborations कहा जा रहा. Consist of approximately 39 plays, 154 sonnets, 2 long narrative poems and a few other works, some of uncertain authorship. कि उसने तकरीबन 39 ड्रामे लिखे, 154 सॉनेट्स लिखी, 2 तवील बयानिया नज़में लिखी और कुछ और कलाम भी जो है उसके नाम से मंसूब किया जाता. सॉनेट आप जानते हैं कि एक डीपली पर्सनल पोइम होती है जो 14 लाइन्स पे मुश्तमिल होती है. पहली 8 लाइन्स को ऑक्टेव कहा जाता है और अगली 6 को ससेट. और ये जो उसने नैरेटिव पॉइंट्स लिखी थी, इनमें एक का नाम था वीनस एंड एडोनिस. इट वाज पब्लिश्ड इन 1593 एंड इट वाज हिज फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क. इट वाज डेडिकेटेड टू अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन. कि नज़्म उसने साउथहैम्पटन के नवाब के नाम मंसूब की थी. The poem tells the story of the goddess Venus, who is infatuated for a mortal human, the young hunter Adonis. कि ये देवी जो है वीनस की कहानी है कि वो जो है एक इंसान अडोनिस की मोहब्बत में मुब्तला हो जाती है. In erotic and humorous passages, Venus courts the youth, attempting to persuade him to make love. कि नज़्म में तफसील से बयान किया गया है कि किस तरह से देवी जो है उसे लुभाने की कोशिश करती है. Adonis resists her advances. Being unmoved by what he sees as simple lust, he prefers to go hunting. कि एडोनिस जो है देवी के इस बात का कोई जवाब नहीं देता. वो कहता है कि ये महज हवस है और इसलिए मैं जो है तुमसे मोहब्बत नहीं करता, और वो शिकार पर रवाना हो जाता, देवी को रिजेक्ट कर देता. The next day, at dawn, Venus discovers the body of the dead Adonis, who has been killed by a wild boar. कि अगले दिन देवी को उसकी लाश मिलती है कि उसे एक जंगली सूर ने हलाक कर डाला. The poem closes with a lament. कि नज़्म के आखिर में देवी जो है अपने पछतावे का इजहार करती है कि उसने जो है अडोनिस को मार डाला. उसके बाद दूसरी जो उसकी पोइम थी वो 1594 में पब्लिश हुई. इसका नाम था द रेप ऑफ लूक्रीस. ये लूक्रीसी, ये लूक्रीसे, तीनों तरह से आप इसे पढ़ सकते हैं.
It retells the ancient Latin story of the sexual assault on Lucretia, anglicized as Lucrece, a high-ranking Roman woman. कि ये जो है लूक्रीस के बारे में है जो रोम के एक आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और इस कहानी में जो है उसका रेप किया जाता. He was raped by Sextus Tarquinius or Tarquin, the son of the Roman king. कि सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो शहज़ादा कमिट करता जो बादशाह का बेटा है. Tarquin, tormented by an awareness of his own evil, proceeds to rape his victim nonetheless. कि पहले तो उसे लुभाने की कोशिश करता है, जब उसकी बातों में नहीं आती तो वो उससे ज़बरदस्ती करता, ज़नाब जबर जैसे कहा जाता. Lucrece's distress is described at length, and her subsequent suicide is presented as a high-minded response to the dishonor of having slept with a man other than her husband. कि इस रेप के बाद उस पर जो गुजरती है, उसकी जो बिपता है, वो बड़ी तफसील से बयान की गई है और लास्ट पे वो ख़ुदकुशी कर लेती है और इस ख़ुदकुशी में भी उसे ग्लोरीफाई किया गया है कि किस तरह से वो जो है इस बात पे मौत को गले लगा लेती है कि उससे कोई रेप करता है और उसे खामंद के अलावा किसी के साथ सोना पड़ता है या सेक्स करना पड़ता है. Before dying, she tells her husband and others of Tarquin's crime and elicits an oath of vengeance from them. कि मरने से पहले या ख़ुदकुशी करने से पहले वो अपने शौहर और बाकी अजीज़ व अकारिब को बताती है कि ये काम जो है शहज़ादे का था और तुम्हें उससे इंतकाम लेना चाहिए. They subsequently drove Tarquin and his father from Rome. तो इसलिए वो लोग जो हैं शहज़ादे और उसके वालिद को रोम से निकाल देता. He was born and raised in Stratford upon Avon, Warwickshire. वारिकशायर जो है वो एक वेस्ट मिडलैंड में इंग्लिश काउंटी का नाम है जहाँ पे ये कस्बा वाक़ था, जहाँ पे शेक्सपियर पैदा हुआ. Sometimes between 1585 and 1592, he began a successful career in London as an actor, writer, and part owner of a playing company called the Lord Chamberlain's Men, later known as the King's Men. कि 1585 और 92 के दरमियान उसने जो है लंदन में एक अदाकार, एक लिखारी और जो है ड्रामेटिक कंपनी के पार्टनर की हैसियत से अपने प्रोफेशनल कैरियर का आगाज़ किया और इस कंपनी का नाम था लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन. लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन ये समझ लें वही एक्टिंग कंपनी थी एलिज़ाबेथन थिएटर की. इट वॉज ए ट्रूप कहते हैं ग्रुप ऑफ थिएट्रिकल परफॉर्मर्स एंड विच शेक्सपियर वॉज अ पार्टनर. Though Shakespeare may have been involved with various other acting companies like Admiral's Men, Derby's Men, Leicester's Men, Pembroke's Men, Queen's Men, Strain's Men and Sussex's Men, कि उसने इन सारी ड्रामेटिक कंपनीज में काम किया था, but he is most closely associated with the Chamberlain's Men, and later it was known as the King's Men after the accession of King James I in 1603, जिसे हम जेकोबियन पीरियड भी कहते हैं और जिसके बारे में हम तफसील से पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि जब किंग जेम्स I ने जो है इंग्लैंड का तख्तो ताज संभाला तो ये जो लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन नामी कंपनी थी इसका नाम फिर तब्दील करके किंग्स मैन रख दिया गया. Shakespeare was a partner in this troupe from at least December of 1594 until his retirement almost 20 years later. कि फिर तकरीबन सारा करियर ही वो इसी के साथ मुंसलिक रहा और बाद में रिटायरमेंट के बाद उसने ये कंपनी और लंदन छोड़ दिया और दोबारा स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में जाके रहने लगा. Shakespeare produced most of his known works between 1589 and 1613. कि जो 24 साल का करियर था इसी दौरान उसने ये तमाम ड्रामे और नज़में लिखी. Until about 1608 he wrote mainly tragedies. कि 1608 तक तो ज़्यादातर अलमिया ड्रामे लिखता रहा. Among them Hamlet, Othello, King Lear and Macbeth, all considered to be among the finest works in the English language. कि इस दौरान उसने ये 4 मशहूर तरीन ट्रेजेडीज़ लिखी जिनके नाम हैं हैमलेट, ऑथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ. इनके बारे में हम तफसील से अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे और इन्हें जो है अंग्रेज़ी अदब के बेहतरीन ड्रामों में से एक समझा जाता है.
Let's go to the next page. In 1623, it means after the death of Shakespeare, two fellow actors and friends of Shakespeare's, John Hemmings and Henry Condell, published a more definitive text known as the First Folio, a posthumous collected edition of Shakespeare's dramatic works that included all but two of his plays. कि उसकी मौत के बाद जो है उसके दो फेलो एक्टर्स और फ्रेंड्स ने उसकी कुलियात मुरतब की कि उसमें सिर्फ उसके दो प्लेस शामिल नहीं थे, बाकी सारा काम जो है वो उन्होंने एक मजमूए की शक्ल में पब्लिश किया। तो उसे फोलियो कहा जाता है। फोलियो कहते हैं एक ऐसी किताब को दैट इज़ मेड ऑफ पेपर ऑफ अ लार्ज साइज, स्पेशली वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक्स प्रिंटेड इन यूरोप, कि शुरू में किताबें ऐसे ही प्रिंट की जाती थी। जो लार्ज साइज़ की किताबें होती थी उन्हें फोलियोज़ कहा जाता था, और जो स्मॉल साइज़ की होती थी उन्हें क्वार्टोज़ कहा जाता था। और जो प्रिंटिंग पेपर होता था दोनों फॉर्मेट्स के लिए, चाहे वो क्वार्टो है या फोलियो है, इट वाज फोल्डेड वंस टू क्रिएट 4 पेजेस। द वॉल्यूम वाज प्रीफेस्ड विद अ पोएम बाय बेन जॉनसन। के इस जो है फोलियो का आगाज़ जो है वो बेन जॉनसन की एक नज़म से होता है। एंड विद जॉनसन recently hails Shakespeare in a now famous quote as not of an age but for all time। उसी में शेक्सपियर को कहते हैं कि शेक्सपियर जो है वो हर ज़माने के लिए, कि he is beyond जो है borders and he is beyond time and space, ये कह लें। Preface to First Folio by Ben Jonson, तो वो जो लिखा हुआ है जॉनसन की जो नज़्म है वो मैं आपको बताता हूँ। This figure that thou here seest put, it was for gentle Shakespeare cut, wherein the Grar had a strife with nature to outdo the life. Oh, could he but have driven his wit as well in brass as he had hit his face, the print would then surpass all that was ever writ in brass. But since he can't, reader, look not on his picture but his book। ये जो है नज़म थी जो जॉनसन ने लिखी और ये फर्स्ट फोलियो में शामिल है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। शेक्सपियर वाज प्रोबेबली एजुकेटेड एट द किंग्स न्यू स्कूल इन स्ट्रैटफोर्ड, कि उसने शायद प्राइमरी एजुकेशन जो है वो यहीं से हासिल की थी, क्योंकि उसके बारे में जो है कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं। At the age of 18, Shakespeare married 26-year-old Anne Hathaway in 1582, कि उसने जो है 26 साल एन हैथवे से शादी की, जो उससे 7 साल बड़ी थी। She was daughter of a farmer in Shortry, a village that is a mile from Stratford. Nicholas Rowe, Shakespeare's first biographer, recounted a Stratford legend that Shakespeare fled the town for London to escape prosecution for deer poaching in the estate of local squire Thomas Lucy। निकोलस रो जो है वो 1674 में पैदा हुआ और 1718 में उसकी डेथ हुई। He was the first critical editor of Shakespeare works. He was also a successful but minor playwright. He issued an edition of Shakespeare's plays in 1709. Second edition in 1714 included the poems also. He worked from highly corrupt text of the Fourth Folio. He also made many emendations, and he also created the list of the dramatic personae and act and scene divisions. The first time these features were provided for most of the plays is at times rather arbitrary and intrusive in its manner, and it can't be tolerated by the modern scholarship। तो उसने लिखा कुछ तब्दीलियाँ भी की, मगर बाज़ दफ़ा जो है वो अपनी तरफ से बहुत कुछ ठोंस देता है, तो फिर ज़ाहिर है उसके इस एडिशन को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। He also introduced his collection with a brief biography। उसने जो है इस कलेक्शन के साथ उसकी सवाने हयात भी लिखी थी शेक्सपियर की। It was based largely in the lore collected by Thomas Betterton, filled with anecdotal information, कि ये भी authentic नहीं
कि इसमें भी सुनी सुनाई बातें मौजूद हैं। जैसे ये बात का तज़करा है कि उसने कहा कि वो जो है लंदन इसलिए भाग गया कि वो जो है चोरी करते हुए पकड़ा गया था। साथ में आपको ये भी बताता चलूँ कि शेक्सपियर के जो है 3 औलादें थीं एन हैथवे से। एक का नाम था सुसाना, शी वॉज बॉर्न इन 1583, and 2 twins named Hamlet and Judith, who were born in 1585. He was attacked in print by the playwright Robert Greene in his Groat's Worth of Wit. Robert Greene, he was one of the university wits, और यूनिवर्सिटी विट्स के लेक्चर में हम इसके बारे में तफसील से पढ़ चुके हैं। ये जो ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट है, ग्रोट जो है वो एक स्मॉल काइन का नाम था, तो ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट मतलब अ मॉर्सल ऑफ विट, इसका मतलब है वही कि वेरी स्मॉल अमाउंट। इसमें उसने शेक्सपियर के बारे में लिखा, कहा जाता है कि वो उसने एक डायरेक्ट तो नहीं लिखा, मगर ये रेफरेंस शायद जो है वो शेक्सपियर की तरफ ही इशारा था। उसने लिखा था अपनी उसमें ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट में, उसका एक पैम्फलेट था, देयर इज़ एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स दैट विद हिज टाइगर्स हॉट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड supposes he is as well able to bombast out a blank verse as the best of you, and being an absolute Johannes Factotum कहते हैं यही मिस्टर डू इट ऑल। ये वो तंजन कह रहा है ना कि वो अपने आप को हरफन मौला समझता है। In his own conceit the only Shakespeare in a country. The second folio is the 1632 edition of the collected plays of Shakespeare. It follows the first folio of 1623. Much language was updated in the second folio, and there are almost 1700 changes. कि फिर जो है सेकेंड फोलियो मरतब किया गया उसका दूसरा मजमुआ या कह लें उसकी कुलियात कि जिसमें जो है ज़रा बेहतरी लाई गई और तकरीबन 1700 तब्दीलियाँ की गई। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। False folio is the term that Shakespeare scholars and bibliographers have applied to William Jaggard's printing of 10 Shakespearean and pseudo-Shakespearean plays together in 1619, the first attempt to collect Shakespeare's work in a single volume. कि विलियम जैगर जो है ये 1568 में पैदा हुआ और जो है 1623 में इसकी डेथ हुई। इसका बेटा आइजक भी इसके साथ शामिल था जो 1597 में पैदा हुआ और 1627 में उसकी डेथ हुई। ये दोनों लंदन प्रिंटर्स और पब्लिशर्स थे, फादर और सन, और ये प्रोड्यूसर्स थे फर्स्ट फॉलियो के, और इन्होंने शेक्सपियर के वर्क्स के और एडिशंस भी जो हैं प्रोड्यूस किए। उन्होंने 1619 में जो है 10 प्लेस जो है लिखे शेक्सपियर के नाम से, प्रोड्यूस किए या पब्लिश किए। अगरचे जो है उसकी प्लेस की प्रॉपर टेक्स्ट जो है इनमें मौजूद नहीं थी, इसलिए इसे फॉल्स फोलियो कहा जाता। अगरचे जो है उस ज़माने में तो ये कॉपीराइट के कवानीन इतने सख्त नहीं थे, इसलिए जब फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ तो उस वक्त भी ये दोनों बाप बेटा मौजूद थे। बाप अगरचे बंदा हो चुका था और इसलिए बेटे ने जो है उसकी प्रोडक्शन में जो है अहम किरदार अदा किया। 19 of Shakespeare's first plays appeared in quarto before the publication of the first folio. ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि quarto और folio में क्या फ़र्क है। 18 of those before his death in 1616. One play co-authored with John Fletcher. John Fletcher जो है ये 1579 में पैदा हुआ और 1625 में इसकी डेथ हुई। ये एक हाईली सक्सेसफुल प्ले राइट था जेकोबियन थिएटर का, और इसने भी शायद 50 से ज़्यादा प्ले लिखे। इसकी ज़्यादातर ट्रेजिक कॉमेडीज़ थी और उसने कुछ प्लेस जो हैं वो व्यूमॉन्ट के साथ मिलकर लिखे, तो एक आध प्ले उसने शेक्सपियर के साथ मिलकर भी लिखा जिसका नाम था टू नोबल किंग्समैन। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1634 और in one play first published in the first folio, The Taming of the Shrew, and it was later published in a quarto form. William Shakespeare died on 23rd April 1616, and to honor this, UNESCO established 23rd April as the International Day of the Book. कि फिर जो है यूनेस्को ने जो है उसके इस जो तारीख़ वफ़ात है इसे इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक के नाम से मंसूब कर दिया। Let's call it a day. God willing, in next lecture, we will discuss Hamlet, one of the greatest works of William Shakespeare. Till then, Allah Hafiz, stay safe, stay blessed, and keep on listening to my lectures. Allah Hafiz. See you very soon.
Stay blessed.